बदला ले लिया है श्रेयस अय्यर ने उनके प्रीवियस फ्रेंचाइज से। बहुत कुछ होगा दिल में, मतलब आई डोंट नो इफ दे लेट हिम गो और इट वाज हिम हु वांटेड टू मूव ऑन, बट बदला तो लिया आज और जम के लिया उसने। तो 111 ही बनाना था, फिर भी वो भी बनाने नहीं दिया उनको। यूजी चहल वाज अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। 4 for 12 in 3 overs he was, but then आप लास्ट ओवर में आंद्रे रसल ने थोड़ा पीटा। बट क्या बोलेंगे, लाइक इट वाज द मोस्ट क्लासिक मैच ऑफ दिस आईपीएल। कौन बोलते हैं कि बैट्समैन ही मैचेस क्लासिक बनाते हैं, बॉलर्स ने भी आज जो क्लासिक बनाया मैच, वही ना। अमेजिंग मैच। आई मीन दिस इज द काइंड ऑफ मैच यू पे फॉर इन द स्टेडियम। ये और ये मुल्लापुर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कभी 200 बनता है, कभी 150 भी नहीं बनता है। आज तो नेल्सन बनाया उनको, फिर भी वो चेस कर लिया, और वो मतलब 111 बनाने के बाद भी 16 रन से जीता वो, क्वाइट अ बिग सोचो ना, मार्जिन। तुम 500 रुपए के टिकट में, 500 रुपए ही होंगे, 1000 मान लो, हम्म 1000 रुपए की टिकट में आपको इतना अच्छा मैच देखने को मिल गया। और जो लोग हम्म मुंबई इंडियंस का मैच खरीद कर जाते 2000 हैं, ढाई पाँच हजार पाँच 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 हजार का टिकट, 5-5 हजार दो है नहीं तो। 5 अभी हो गए, 5-5 हजार हम्म का टिकट जो लेकर लोग जाते हैं, हम्म उनका सोचो, वो लोग जब हार जाते हैं, वो भी आरसीबी के सामने जब हार गए थे, हम्म। मतलब पैसा वसूल परफॉर्मेंस। और मुलनपुर वैसे भी पूरा बहुत वियर्ड स्टेडियम है, चंडीगढ़, न्यू चंडीगढ़ से काफी दूर है काफी ऐसा। दूर है, और जो हम्म एरिया में है वहां का पॉपुलेशन ही 17,000, पर हम्म। स्टेडियम का कैपेसिटी 35,000 है, तो मतलब समझ सकते हो, पूरा आधा स्टेडियम भी आज खाली था, उतना भरा हुआ भी नहीं था। मतलब ये अच्छा मैच देखने को एटलीस्ट मिला बहुत टाइम के बाद। द लोएस्ट टोटल डिफेंडेड बाय एनी टीम इन आईपीएल। तो आज हम लोग दो मैच की बात करेंगे, कल का मैच भी हमने कवर नहीं किया, तो कल के मैच के बारे में बात करेंगे। क्लासिक एमएस धोनी शो गॉट द मैन ऑफ द मैच आफ्टर 6 years, बिकॉज उसको मुरली कार्तिक ने पूछा था, डू यू रिमेंबर which match you won, so he said it was 2019. I mean, he didn't remember obviously, but it was But 2019. he equaled Rohit Sharma's most man of the match. So Rohit Sharma was at the top with Oh, is it not 90. Virat Kohli? No, it's not Virat Kohli. It's Rohit Sharma. I told you right. Rohit Sharma is there in every stat possible. And to be honest, And now he's it on the was, stands also. yeah, he got a stand also. That's another thing to talk about. But Yeah. Rohit Sharma had 19 man of the match awards, Hmm. and Dhoni had 18. And after Hmm. 5 years, he was able to take it up to 18, 18 to 19. So now he has equaled Rohit Sharma. बट लग रहा And था ना वो गुस्से में है सामने वाली टीम पे, ऐसे ही। बहुत जो हिसाब से वो he was cheering like every ball, and I mean this was sheer brilliance of captaincy, the way he rotated the bowlers. Yes, Ricky And Ponting is, did you see that Ramandeep catch where he moved to the leg slip and he got the catch there? no, I was just returning home from office, so Yeah, I was so not able to. Ramandeep tried to paddle sweep, and it touched his bat and went up, and he was standing on first slip. He moved to leg slip for that catch, anticipating that it would go there, and that was Shreyas Iyer. Yeah. पंजाब ने स्टार्ट वैसे ही किया जैसे वो करते हैं प्रभसिमरन Hmm. और प्रियांश आर्या ने, but there was some amazing fielding and bowling by KKR, as they already do. Last 4 matches, three so they have been chasing or making 100 runs only, because with CSK they were chasing 107, and then before that LSG match, that was a high scoring match, but before that with Mumbai they scored only Mumbai, 116. yes. So it has been a stint of low scoring matches for KKR, but their bowling has been good. But after that it was all bowling. After the Priyan Share and Pram Simran, everything was going in KKR's way until and unless they started batting. Their batting just did not pick up. Yeah, before that even Rahane was playing slow, so you told me that ये last over तक जाएगा, but and you know what? I think there was a stat where in the middle overs, people were saying that if KKR chases this in 14 point something overs, then they would go up the table. But it was almost that Punjab might win it in 14.1 overs. That was the case at the end of the match. Yeah. But they won it in 16th over, I guess. Yes, 16.1. 16 to. So 15.1, yes. It was a cracker of a match, but कल भी एक मैच था जहाँ पे एक 43 और फार्मर को इतना हम भी बोलते हैं, लोग भी बोलते हैं कि वो खेलते नहीं है, उनको रिटायर हो जाना चाहिए था। बट आप मेरे को एक बताओ जिनाश, अगर MS धोनी रिटायर हो जाता है, हम हमेशा बोलते हैं कि ब्रॉडकास्टर्स, उनके टीम मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, उनके लिए पैसों के लिए, बट अगर वो रिटायर हो जाता है, आपको कोई लगता है कोई भी इम्पैक्टफुल सीएसके में है नहीं है। मैटर? आप लास्ट 3 मैच का स्क्वाड उठा लो, आप हम्म आपके टॉप 7 टॉप 8 तक, मतलब अज्यूमिंग MS धोनी 8वें नंबर पर आते हैं बल्लेबाजी हम्म करने,
टॉप 8 पर भी कोई कौन सा आपके पास 6 हिटर था? So you told me yesterday that there was a lot of positives for CSK in that match. Yes. What do you think were the positives for CSK? Firstly, your bowling is good, and one great decision I found was that taking Jamie Overton into the squad. That was a very good decision. Yes, उनका bowling उतना कुछ class नहीं है, पर वो अभी देखिए धोनी के अंडर आए हैं तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा ही उनमें। वैसे सैम करन का भी हुआ था इम्प्रूवमेंट, और फिर वो गए थे पंजाब में, वहां पर उनको मिलियन की जितना भी मिला था वो टाइम पर, $1 million कुछ मिला था वो टाइम पर, और मतलब वो सब धोनी का ही था। और फिर देखो क्या हो गया, धोनी का हाथ चला गया उनके ऊपर से, फिर क्या हो गया, आधे भाव में भी नहीं आए वो। तो मतलब वैसे है तो जेमी ओवर्टन कुछ ना कुछ कर लेंगे, पर एक चीज क्या था, धोनी भी फ्रीली खेल पा रहे थे, बिकॉज जेमी, उनको मालूम था जेमी ओवर्टन नीचे थे। अच्छा है, एक लायबिलिटी आपका, जो लायबिलिटी नहीं बोलूंगा, जडेजा ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया, पर बैटिंग में उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, तो उनको पहले नंबर 4 पर ही भेज दिया कि तुम लोग कुछ कुछ ना कुछ तो करो तुम लोग। जो धोनी बोलते हैं, प्री मैच में भी बोला था कि उनको प्लेयर्स को बोल नहीं रहे कि तुम सिक्सेस मारो, ठीक है चलो सिक्सेस नहीं मार, पर तुम्हारा नेचुरल शॉट्स तो आप खेल लो। तो विजय शंकर ने भी इंटेंट दिखाया था, नो डाउट उन्होंने उतना खेल नहीं पाए, पर उनका फर्स्ट बॉल वो आए और सीधा जो मारे, उनके पास क्रिकेटिंग शॉट्स है। वही धोनी बोल रहे थे कि वही धोनी बैक कर रहे थे। तो अंशुल कंबोज का जो एडिशन था वो बहुत अच्छा था। शेख रशीद को वापस लेकर आए, वो एक अच्छा चीज, बहुत सही चीज था। मतलब मैं बोलूं तो मतलब फर्स्ट टाइम पावर प्ले में आपका स्कोर 50 के ऊपर था, फर्स्ट टाइम पावर प्ले में। तो ये सब पॉजिटिव्स है। और अभी नेगेटिव्स पर आते हैं तो अभी भी मिडिल ऑर्डर आप उनका थोड़ा प्रॉब्लम है, वो एक बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ा नहीं बहुत प्रॉब्लम, थोड़ा नहीं सॉरी बहुत प्रॉब्लम है। और आई थिंक राहुल त्रिपाठी को बिठा देंगे और आयुष मात्रे को लेकर आएंगे, क्योंकि वो ही इज अ वेरी गुड प्लेयर और उनके पास अभी चॉइस भी नहीं है। तो उससे अच्छा आयुष मात्रे को आप ट्राई कर लो, सुलझे हुए प्लेयर है। सोचो पृथ्वी शॉ को ड्रॉप करना पड़ा मुंबई से उनको अकोमोडेट करने के लिए, या तो आयुष मात्रे नहीं तो वंश बेदी को लेकर आ सकते हैं नेक्स्ट मैच में, क्योंकि वंश बेदी के साथ धोनी प्रैक्टिस भी कर रहे थे। वंश बेदी के पास ही कम्स विद अ वेरी गुड DPL record also. He played very good in with DPL. Ayush Matre, right? Like He didn't play DPL, no. No, obviously he's from Mumbai. Why will he play Yeah, DPL? sorry. So he played Ranji, right? No, but he played Ranji, but white ball, and if you are talking about white ball, so मतलब these Priyansh Arya players have also come from the same league, DPL only. So that way मैं वो हिसाब से बोल रहा हूँ कि वंश बेदी का ज्यादा चांस है, क्योंकि व्हाइट बॉल उतना खेले, क्योंकि आई थिंक स्मैट नहीं खेले थे वो, विजय सारे खेले थे, पर उसमें भी उनका रिकॉर्ड अच्छा था आयुष मात्रे का। आई मीन यू कुड सी हाउ जडेजा वाज परफॉर्मिंग अंडर धोनी। उनके 4 ओवर के कोटे खत्म करना, अंशुल कंबोज को कैसे यूज करना, पाथिराना को कैसे करना, मतलब ये सब आपको दिख रहा था। और ऋतुराज गायकवाड़ में मेरे को पहले से वो स्पार्क कैप्टेंसी का मेरे को दिख भी नहीं रहा था। लास्ट ईयर मैंने उनको फुल देखा, उनको कैप्टेंसी करते हुए उतना कुछ खास लगा नहीं था, तो मेरे को लगा पहला सीजन है, ठीक है करके मैं जाने, क्योंकि पहले से ही सीएसके का फोकस ज्यादा, वो पहले में भी मानती थी ना सीएसके कि हम इधर ट्रेनिंग एकेडमी खोलकर नहीं बैठे, हम लोग इधर हम स्टार प्लेयर्स को ही खिलाएंगे। जैसे शेन वॉटसन जैसे प्लेयर को भी एंड तक बैक किया जस्ट बिकॉज उनके पास एक्सपीरियंस था। और नो डाउट 2000 जो भी था 2020 फाइनल में जब उनका ब्लीड हो रहा था, नहीं 2019 फाइनल में जब उनका पैर ब्लीड हो रहा था, तो वो टाइम पर उनका मतलब पूरा सीजन अच्छा गया था, तो वो हिसाब से मैं देख रहा था। पर फिर मैं ये सेकेंड ईयर में भी अभी मैंने उनका फर्स्ट के 4-5 मैचेस मैंने देखे, आई वुड वांट हिम टू बी अ बैट्समैन फर्स्ट देन अ कैप्टन। कैप्टनसी का प्रेशर आप निकाल दो अपने में, बिकॉज देर आर वेरी फ्यू पीपल हु कैन गेट दैट इनटू देम। उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है, उनका कैप्टनसी भी अच्छा होता है, जैसे श्रेयस अय्यर है, ही इज नेचुरली बिल्ड दैट वे, सो इट वर्क्स फॉर हिम। It didn't work. It didn't work much for Virat Kohli. It can't work for Ruturaj Gaikwad. It's fine. So it didn't even work to some extent for Rohit Sharma also. So all the 3 losing teams have won matches and gotten back to winning ways. अभी लगता है इस टूर्नामेंट थोड़ा ओपन हो जाएगा, and yes, looking at अभी the तो way टेबल all ओपन the हो teams गया। are all the teams are like पंजाब भी कोलैप्स किया पिछले मैच में एसआरएच के सामने, आज वापस आ गया। केकेआर तो कोलैप्स कर ही रहा है, बीच आरसीबी कभी भी कोलैप्स कर सकता है,
एलएसजी कल अच्छा नहीं खेला होम with होम में the चिन्नस्वामी में तो खत्म ही है वो लोग। but वो मतलब it feels that the tournament is going to open up. The only team I feel from here, the last three teams, I mean last four actually, RR. I would say RR will come more down. I don't think they are going to stay on eight for more time. They'll come even more down. I think कल उनका मैच है, I think डीसी के साथ है, तो डीसी के साथ तो I don't think they are going to win. तो और नीचे आएंगे। मुझे लगता है कि मुंबई अभी बहुत ऊपर जा सकता है because if they take the positives out of that match and get beyond that, I think ये पूरा जो टेबल है वो बहुत खुल जाएगा। CSK, if they make those changes as we spoke about, either Ayush Matre or Vansh Bedi, whoever comes in and they start performing and Shaikh Rashid keeps performing and MS Dhoni does what he is doing, and even Shivam Dube we saw got into a good form last match, and before that also he was getting into good See, form. his also the same problem. Like I wouldn't say good form. वो तो एंड में फिर धोनी ने आकर वो, और मतलब ऋषभ पंत का भी ब्रेनलेस कैप्टेंसी था। पहले तो तुमने स्पिनर को यूटिलाइज नहीं किया धोनी के सामने, जो सबको पूरी दुनिया को मालूम है कि वो नहीं खेल पाता है। क्यों उसको खिला स्पिन के सामने? तो मतलब स्पिन के सामने ही खिलाना पड़ता था, पर उसने तब भी उसने शार्दुल ठाकुर को उनको यूज किया और फिर देख लिया। मतलब वही था। पर मैं नहीं बोलूंगा कि शिवम दुबे का इनिंग्स मतलब वो, यस उसने उसने एंकर किया, पर उसका काम नहीं एंकर करना। इफ धोनी इज हिटिंग फ्रीली देन व्हाई कांट यू हिट फ्रीली? तुम्हारे पास है प्लेयर जेमी ओवर्टन नीचे, नहीं, वो बट उसको कर अच्छा लेता है। प्लानिंग पे डाल रहे थे ना वो लोग, ऐसा नहीं है बिकॉज उसके नहीं पर आंख में भी डाल रहे नॉट थे, मीन उसकी नहीं, पर वो तो वाइड फुल ऑर्डर भी टॉस डाल पर रहे था। थे। 17.4, 17.5, 17.6, हम्म, तीनों तीनों लो लो फुल टॉस थे। अभी लो फुल टॉस को तुम नहीं मार सकते हो क्या भाई? हम्म, एटलीस्ट 2 रन तुम भाग सकते थे। मतलब मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ शिवम दुबे का इनिंग, पर उसको हम्म, उसको वो रोल नहीं है। तुमको नहीं करना है, तुमको एंकर नहीं। नो डाउट पहले वाले लोग ने नहीं मारा है, पर तुम्हारे पास अभी तक बैटिंग है नीचे। जेमी ओवर्टन है तुम्हारे पास, वो हार्ड हिटर है। उसने हम्म, ऑलमोस्ट गेम पलट दिया था इंडिया के सामने। या वो पलट पाया पूरा, पर उसने ऑलमोस्ट पलट दिया था। तो वो पेसर्स को मार सकता है, उसको मारना आता है पेसर्स को। उस स्पिनर को नहीं। वो उसका भी प्रॉब्लम है, स्पिनर के साथ नहीं खेल सकता है। वे वो तो दोनों पूरे ही। इंग्लैंड टीम का प्रॉब्लम है बट हाँ, वो तो पूरे इंग्लैंड टीम का मतलब वो वैसा चीज है। तो मैं अगेन आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग शिवम दुबे's इनिंग, बट ही कुड हैव प्लेड अ मच बेटर रोल, स्ट्राइक रेट और ये सभी देखो। धोनी 26 फ्रॉम 8 पर चल रहे हो, और तुम मतलब कब के आए हुए हो तुम? 31 फ्रॉम 35। तुमने एंड में तुमने 6 और 4 तुमने मारा वो शार्दुल के नो बॉल पे। even in 2025 when he's 33-year old, that guy is still holding and being the best player for the side. It's something to learn from for everyone, for to take inspiration for every one of us. But hats off to that guy. Amazing gameplay and the way he's leading from the front, even at the age of 43. Coming back to leading today, हम बोले हमेशा लोग बोलते होंगे कि बड़े प्लेयर को ज्यादा के बारे में ज्यादा बात करते हैं, प्रियांश आर्या, कप्सिन, ये लोगों के बारे में नहीं। बट 111 से अगर आपको कोई टीम जिता रहा है और 95 पे ऑल आउट करा रहा है, तो इट शुड बी अ ब्रिलियंट कैप्टन, ये तो बोलना ही पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से बॉलर्स को यूज किया, उसको पता था कब कब कौन से बॉलर को लाना है। अजिंक्य रहाणे को उसने स्पिन लगा के रखा, उसको पता था ये स्पिन पे ही आउट होगा। It was a lapse of his judgment also that he did not take that review because it was hitting outside off. But still, amazing captaincy from Shreyas Iyer. कैप्टेंसी, गुस्सा, सब कुछ निकल गया। मतलब आज दिखा दिया उन्होंने कि Hmm. मतलब क्या होता है उनको रिटेन ना करने का। Yeah. आप देखोगे तो वो जो भी टीम के साथ खेले, अपने एक्स टीम को उसने हर टाइम हराया ही है। बाकी वो Correct. दिल्ली हो या अभी केकेआर हो। और अभी Hmm. ये वाला मैच तो, और उनकी डिमांड भी कुछ खराब नहीं थी। Hmm. आपने 27 करोड़ वेंकटेश अय्यर जैसे प्लेयर को आपने दिए, जो मतलब अभी भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उनको क्रिकेट में उतना वो है ही नहीं रुचि, करनी नहीं उनको, अब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और Hmm. 27 करोड़ लेकर बैठे हैं। 111 तो एटलीस्ट वो चेस अकेले भी कर सकते थे, 40-50 मारकर। सब लोग पीछे पड़ेंगे धोनी के, जब धोनी नहीं मार रहा था। वो तो 4 Hmm. करोड़ लेकर बैठा है, तब भी उसके Hmm. पीछे। रोहित शर्मा के पीछे एटलीस्ट इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलकर तो जाता है। 17 जो भी है, मतलब आउट हो जाता है जल्दी, पर Hmm. एटलीस्ट उसके जो भी बॉल्स है वो एटलीस्ट गिना कर तो जाता है तुमको। इट वाज नॉट रॉन्ग दैट श्रेयस अय्यर आस्क्ड फॉर व्हाटएवर मनी ही वांट, ही शुड Yeah. हैव गॉट। ही वन यू एन आईपीएल, इट वाज नॉट। yes, it could be Gambhir who was giving him inputs and all of that, but it is, Hmm. what matters is what happens on the ground.
And there Yeah. have been people within the KKR also telling like there were certain decisions which not certain a lot of decisions which Shreyas Iyer took without take. I mean, he got some inputs from the dugout, but he didn't take those inputs. He put his own inputs and they won the match. He deserved what he got, and PBKS have made a very good comeback. I thought they were doing typical Punjab King stuff, Hmm. irrespective of who the captain is or who the coach is, whatever Hmm. control he has got. By looking at the first inning score and by especially hearing the interview of Varun Chakravarti, जिन्होंने Hmm. बोला कि ये इजीली 190 180 पिच इजीली 190 180 पिच थी, मतलब अपना स्पिन का इतना तारीफ कर दिया उन्होंने कि मैंने हाँ, 190 180 पिच को सीधा गिरा दिया मैंने, 90 पे ला दिया। पर तुम्हारी खुद की टीम नहीं चेस कर पाई, 90 नहीं चेस 90 नहीं 100 क्रॉस भी कर नहीं पाए। मार पाए, 100 भी नहीं मार पाए। मेरे को तो नहीं लग रहा है ये परफॉर्मेंस देखकर कि केकेआर प्लेऑफ के आजू बाजू भी आएगी। The problem with KKR, you know what is? Their retained players are not contributing at all. Russell, Ramandeep, Rinku Singh, Venkatesh Iyer. All these four players are not contributing at all. अंग्रेज And रघुवंशी का तो आज था भाई फेलियर, नहीं तो हर आज मैच वो फेलियर नहीं अच्छा बोलूंगा खेला है। मैं। अगर तुम फेलियर भी नहीं था। 111 के स्कोर में जो बंदा 37 बना रहा है उसको तुम फेलियर कैसे बोल सकते हो? नहीं मतलब वो देखो उसका विकेट नहीं जाता तो मैं बोल सकता था कि हम्म, उसने एक वो खेल सकता था, देखो एक मैच्योर्ड इनिंग्स खेल सकता था वो, इसके लिए मैं उसको फेलियर बोल रहा हूँ, उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो हम्म, जिताया है मैच अभी, और अभी हम्म, केकेआर के लिए अभी रेगुलर खेल रहे तो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं फिनिश करके जाऊं, जो हम्म। आज वो कर सकता है, और उसके विकेट के बाद ही सब कुछ खराब हो गया। उसका विकेट गिरा, फिर वही ओवर में दूसरा विकेट भी गिरा, चाहल ने दूसरा भी निकाला। अंग्रेज रघुवंशी को थोड़ा खेल सकते थे वो, पर ठीक है एक वन रेयर फेलियर है, बाकी सब लोग तुम्हारे वेंकटेश रिंकू क्या कर रहे हैं, और मेरे को नहीं लग रहा है कि अभी इसका वर्ल्ड कप स्क्वाड भी मे बी जाएंगे रिंकू सिंह। Rinku is difficult to say that he will be टू making to the सीजन ही squad. हैज फेल्ड नाउ यू नो। Yeah, and his woes against spin is quite obvious. He does connect sometimes to the fast bowlers, but against the spin, against quality spin like Yuzi Chahal today, he was like even to Maxwell he couldn't bat. नो ही वाज नॉट Okay. एबल टू कनेक्ट ओनली। So into nine balls, 2 runs, and he could barely make contact to the ball on the spinning track. So Rinku Singh does need to think, and I don't know what Ramandeep is doing. In any matches, he has not made any kind of contribution. This was about the two matches which we missed. We are not going to be there after tomorrow's match as well because we have some prior commitment. So we'll be back on the Mumbai and SRH match. That should be a cracker of a match because it's in Wankhede. Expected to be a high scoring ground, but it hasn't been so far in the tournament. So we hope that SRH and Mumbai match is great. Tomorrow we'll see what RR can do. Can they get back to winning ways just like CSK, SRH, and Mumbai did? If they couldn't win tomorrow, I don't think their tournament is going anywhere. They would be ending up somewhere contending for the wooden spoon. So probably looking out for them. I think DC would get back to winning ways. The captaincy of the nonchalant Akshar Patel when he's asked कहाँ गया मैच, तो he's saying मुंबई के पास. मुंबई के Amazing captain. That is the actual meaning of Captain Cool for me. But we'll keep an eye on those both the matches. We'll be back for another videos. Until then, take care. Bye bye.